आसनसोल नगर निगम चुनाव के मद्देनजर टीएमसी की तरफ से आज कल्याणपुर के एक निजी मैरिज हॉल में एक संगठनिक बैठक की गई। आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मुलाय घटक के नेतृत्व में हुई इस बैठक के दौरान आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों के टीएमसी प्रत्याशी उपस्थित थे। इस बैठक को लेकर मुलाय घटक ने कहा कि आज की बैठक के दौरान आने वाले निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। मुलाय घटक ने कहा कि आज की बैठक में सभी प्रत्याशियों की समस्याओं को सुना गया और उनके समाधान के लिए उन बातों को नोट कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर सभी कुछ कोरोना के नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल डोर टू डोर प्रचार में सिर्फ 5 लोग ही रह सकते हैं। साथ ही प्रचार के दौरान कोरोना के अन्य सभी नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि बड़ी सभा के दौरान 250 लोगों को लेकर ही प्रचार किया जाएगा। मुलाय घटक ने कहा कि कोरोना को लेकर जो भी सरकारी नियम होंगे उनको मानना पड़ेगा। आज के हमारे पश्चिम बर्धमान जिलार तृणमूल कांग्रेसের যিনি সভাপতি বিধান উপাধ্যায় তার নেতৃত্বে 106 জন প্রার্থী তাদেরকে আমরা একটা সভা করলাম। আগামী যে পৌরসভা নির্বাচন, আগামী আসানসোল কর্পোরেশনের যে ভোট, সেই ভোটের প্রস্তুতি সভা। এই যারা প্রার্থী তাদের কি সুবিধা আছে অসুবিধা আছে সেগুলো আমরা জানলাম, আমরা নোট করে নিয়েছি। আমরা চেষ্টা করব সেগুলো যাতে প্রার্থীদের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারি। পোস্টার আছে, ব্যানার আছে, দেওয়াল লিখনের ব্যাপার আছে, কিছু কিছু ডিমান্ড আছে, স্ট্রিট কর্নার করা ডিমান্ড আছে, আমাদের যারা নেতৃবৃন্দ আছে জেলার তাদেরকে পথসভা করানো, সেই ব্যাপারেই আজকে মিটিংটা ডাকা হয়েছে। কোভিড চলছে কিভাবে এইভাবে কোভিড পরিস্থিতি মেনেই সব কিছু করা হচ্ছে। আজকে যেমন প্রার্থী ছাড়া আর একজন কাউকে এক্সট্রা ডাকা হয়নি, 106 জনই ছিলেন, তার বাইরে কেউ ছিলেন না। ঠিক সেইভাবেই যেখানে কোভিড গাইডলাইন যা আছে সেই গাইডলাইনকে রেখেই করা হবে। প্রার্থীদের বলে দেওয়া হয়েছে 5 জনের বেশি লোক নিয়ে তারা বাড়ি বাড়ি যেতে পারবেন না, 5 জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাড়ি বাড়ি প্রচারে তারা যাবেন। এছাড়াও স্ট্রিট কর্নারিংয়ে যাতে বেশি লোক না হয়, 25, 30, 50 জন। আর এমনিতে কোভিড পরিস্থিতি বলেছে বড় সভা যদি মাঠে হয় তাহলে 500 পর্যন্ত লোক ডাকা যেতে পারে। তো আমাদের যদি শীর্ষ নেতৃত্ব আসে তখন আমরা সেই সমস্ত সভার কথা চিন্তা করব। কিন্তু বর্তমানে আমরা কিছু ছোট ছোট স্ট্রিট কর্নারিং এবং বাড়ি বাড়ি প্রচার এটার উপরেই আমরা জোর দিচ্ছি। গতকাল 500 যেটা বলছেন সেটা 250 ইয়েতে দাঁড়িয়েছে। সভা করলে 250 লোককে নিয়ে সভা করতে হবে। গতকাল যা থাকবে কোভিড গাইডলাইন যা থাকবে তাই হবে। তো রোজই পরিবর্তন হয়। যদি বলে যে সভা করা যাবে না, সভা করব। দেখুন এই বর্তমানে যেটা পরিস্থিতি, 250 লোক বলছে নিয়ে সভা করায়, তো সেই পরিস্থিতিতে দল সিদ্ধান্ত নেবে কে আসবেন কে আসবেন। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सिविक वॉलंटियर्स की भूमिका काफ़ी अहम हो गई है। ये सिविक वॉलंटियर्स अपनी जान पर खेलकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने की कोशिश करते हैं। आज रानीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर मंगलपुर मोड़ पर हुए एक सड़क दुर्घटना में एक सिविक वॉलंटियर ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी। हादसे में मृत सिविक वॉलंटियर का नाम अभिजीत मुखर्जी है। 34 वर्षीय अभिजीत जेके नगर इलाके का रहने वाला था। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक 10 चक्का ट्रक की चपेट में आने से अभिजीत की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को अपनी हिफाजत में ले लिया है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। গ্রামবাসী হিসাবে আমাদের কাছে সকালে যখন খবরটা আসে থানা থেকে, তারপর থেকে আমরা সব খবরগুলো জানতে পারলাম। ওনার বাবা একা হসপিটালে রয়্যাল কেয়ারে চলে এসেছে। ততক্ষণ খবর পেলাম যে নাইটে তার ডিউটি ছিল, সকাল 6টার সময় তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সেখানে নাকি পুলিশের যে ভ্যান ছিল সেই ভ্যানের কোনো খারাপ হওয়ার কারণে তারা রিপেয়ার করছিল, সেখানে নাকি ড্রাইভার হয়তো সেইটা সারাচ্ছিল আর ও পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেই অবস্থায় একটি ট্রলার তাকে জিপটাকে ধাক্কা মারে এবং জিপটার ধাক্কাতে সে আঘাত পায়। তারপর সেখানেই নাকি তার অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়
পরবর্তীকালে পুলিশ যেহেতু সেখানে নিজেরাই ছিলেন অফিসাররা, তারাই রয়্যাল কেয়ারে হয়তো ভর্তি করেছেন। এই ঘটনা শুনে কোন আমরা জায়গায় ডিউটি করছিলেন? মঙ্গলপুর কোন ফাঁড়ির আন্ডারে করছিলেন? আমরা সোতা ফাঁড়ি তবে ওনাকে তড়িঘড়ি কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়? করে করে রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা পৌঁছানো পরেই শুনলাম যে আর সে বেঁচে নেই। মানে তার মানে আমরা ভাবছি যে সেটা হয়তো স্পটেই হয়ে গেছিল, কোনো কারণে সেটা আর রিমুভ করার কোনো জায়গা ছিল না। আমরা খুবই দুঃখিত। এটা কি কুয়াশার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট মনে হচ্ছে? কুয়াশার কারণে না কী কারণে, কারণ ওকে তো পেছন থেকে ধাক্কাটা পেয়েছে। ও জিপের সংলগ্ন পাশে দাঁড়িয়েছিল জিপের কাছে, ও হয়তো বুঝতেই পারেনি পেছন থেকে কোনো একটা গাড়ি তাকে ধাক্কা দিচ্ছে। শুধু দুঃখের বিষয় একটাই যে একটু সতর্কতার দরকার এই মুহূর্তে আমাদের ছেলেদের রয়েছে। পরপর এই ঘটনাগুলো ঘটছে। আমরা এর আগেও একটা হাড়া ভাঙা ছেলের বা আরও দু একটা ছেলের ঘটনা শুনলাম, খুবই দুঃখিত। আমরা একটু সতর্ক, আমাদের এই সিভিক ভলেন্টিয়াররা কিছু মাত্র পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্য আজকে জীবনগুলো হারাচ্ছে। আমি খুব দুঃখিত। বাড়ির একটি ছেলে খুব কষ্টে, তাদের পরিবার, তার মায়ের খুব শোচনীয় অবস্থা। জানি না তার মায়ের কী অবস্থায়, মানে রিমুভ করবে কিনা হার্টের পেশেন্ট। আপনার নাম? আমার নাম অজিত কুমার মাহাতো। আমি আমার প্রতিবেশী, আমার পাশে ছিল, আমার গ্রামের। হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টে একজন আমাদের কলিগ মারা গেছে। আমাদের যে সিভিক ভলেন্টিয়ার, তার নাম হচ্ছে অভিজিৎ মুখার্জি, সে মারা গেছে। সে আমাদের জেকে নগরে থাকে। সে মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টে, সকালের দিকে হয়েছে। একটা গাড়িও আমরা ধরেছি, অফেন্ডিং ভেহিকেলকে আমরা ধরেছি। যে গাড়ি ধাক্কা মেরেছে তাকে ধরা হয়েছে, কেস করা হবে, তদন্ত হচ্ছে। কি করছিল তখন কিছু জানতে পেরেছেন? ওখানে আমাদের টায়ারটা বাস্ট হয়ে গেছিল গাড়ির, সেই টায়ারটা চেঞ্জ করছিল ড্রাইভার এবং যে অফিসার আর অন্য সিভিক ছিল তাদের বক্তব্য তাই, এবং সেটা ভেরিফাই করা দেখা হয়েছে যে ওখানে টায়ারটা আমাদের গাড়ির বাস্ট হয়ে গেছিলো। ওটাকে লেফট সাইডে মানে সাইড করে ওখানে প্রপার সিগন্যালিং করে পুলিশ ওখানে দাঁড়িয়ে টায়ারটা ঠিক করছিল। তবু হাই স্পিডে তো হাইওয়েতে গাড়ি এসে ওই পেছন দিক থেকে ওই যে সিভিক দাঁড়িয়ে ছিল তাকে মারে, দিয়ে আমাদের গাড়িতে ধাক্কা মারে এবং আমাদের গাড়িও ড্যামেজ হয় এবং ও আহত হয় এবং ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে হসপিটালে যায় এবং মারা যায়। आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी अमरनाथ चैटर्जी ने आज आसनसोल बाजार इलाके में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उनके साथ कोरोना नियमों का पालन करते हुए कुछ एक लोग ही थे। अपने आज के बाजार दौरे के दौरान अमरनाथ चैटर्जी बाजार के व्यापारियों से मिले। व्यापारियों ने उनको अपनी समस्याएं बताई। अमरनाथ चैटर्जी ने उनकी इन समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। आसनसोल टाइम्स से बात करते हुए अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि उनको इस वार्ड से जीत का पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि लोगों का भाजपा से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो बाजार में ही एक दफ्तर बनाएंगे जहां वो रोजाना आकर बैठेंगे, जिससे लोगों के साथ उनका सीधा संबंध बना रहे। এই যে আপনি প্রচার করছেন বাজার এরিয়াতে, কিভাবে রেসপন্স পাচ্ছেন এবং কি মনে হচ্ছে? এবং খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছি। মানুষ খুব ভালোভাবে আমাকে গ্রহণ করছেন এবং যারা বাজারের মানুষজন রয়েছে আমার সঙ্গেই রয়েছেন, তারা সগ্রাহে গ্রহণ করেছেন বলেই আমি এখানে প্রার্থী পদে সম্মতি দিয়েছি। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা, সেটা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে যেমন উজ্জীবিত করেছে, আসানসোলের মানুষজনকেও উজ্জীবিত করেছে। আমরা আগামী দিনে সুন্দর আসানসোল করার পরিকল্পনা করছি এবং বাজারের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করব। এবং এখানে আমার স্থায়ী অফিস থাকবে, সেই অফিসে আমার লোক থাকবে, যারা আমার পার্টির লোক, যারা আমার সংগঠনের লোক, তাদের মাধ্যমে আমরা সমস্ত কাজ সমাধান করার চেষ্টা করে নেব। আপনার সাথে এই এলাকার মানুষের যে একটা সংবাদহীনতা, সেটা তৈরি হতে আপনি দেবেন না? না, এখানে কোনো রকম আমার বিরোধের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।
কারণ এখানকার যারা মানুষ তারা বিগত দিনে দেখেছে যে মানুষটি আমার বিরুদ্ধে বিজেপি দাঁড়িয়েছে, সেই মানুষটির কার্যক্রম দেখেছে, সেই জন্য তারা ওই বিজেপির ওই প্রার্থীকে নিশ্চয়ই পছন্দ করবে না। এবং বিজেপির যে ভারতবর্ষকে পিছিয়ে দেওয়ার যে নীতি, সেই পিছিয়ে দেওয়ার নীতিকেও তারা সগ্রাহে গ্রহণ করবে না। आदिवासियों का पवित्र त्योहार वंदना पर्व के अवसर पर सलूजा रेसिडेंसी के तत्वाधान में रानेश्वर सलूजा रेसिडेंसी कॉम्प्लेक्स में आदिवासी महिलाओं को वस्त्र वितरण किया गया। सलूजा रेसिडेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकी सलूजा ने कहा कि इस क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के लिए सड़क, विद्युत, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाया जाएगा। आदिवासियों की मदद के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे, वो भी हमारे समाज के ही अंग है। उन्होंने कहा कि हमारे कंपनी की तरफ से इस इलाके को विकसित किया जा रहा है। व्यवसायियों के लिए आवास एवं कार्यालय काफ़ी कम शुल्क में यहाँ उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस इलाके के लोगों की मांग थी कि कब निःशुल्क में यहाँ अपार्टमेंट का निर्माण किया जाए, इसलिए ये अपार्टमेंट निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने आदिवासियों के पर्व की शुभकामनाएं व्यक्त की। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। रुकिए। हाँ। सलूजा रेसिडेंसी की तरफ से आज आदिवासियों के बांधना प्रोग्राम के लिए साड़ी का वितरण किया गया। हम चाहते हैं कि जो आदिवासी, संथाल, माझी, जो निम्न जाते हैं उन लोगों को आगे समाज में बढ़ाया जाए। जो हमारे ज़मीन से उन्हें काफ़ी यहाँ पर काम के माध्यम से उनके घर में रोजी रोटी का जो समस्या है वो दूर होगा और उनका विकसित होगा। हम सलूजा रेसिडेंसी की तरफ से चांदडांगा माझीपाड़ा में शौचालय के व्यवस्था कर रहे हैं, उनके रास्ते का सड़क का निर्माण कर रहे हैं और वहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था को निभाते हुए उन्हें तरक्की की तरफ आगे बढ़ाते हुए सलूजा रेसिडेंसी की तरफ से उनको बांधना प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई हो। और हम चाहते हैं कि समाज में उनको एक नाम मिले और समाज से पॉलिटिकली जो उनको दबोचा गया है उनको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। हम सबका साथ और आप लोगों के प्रेस का भी हम बहुत रानीगंज के, जमोड़िया के, बोगड़ा के सभी प्रेस वासियों का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सही तरीके से आगे बढ़ाने के हमें बहुत सहयोग किया। सबका धन्यवाद। मेरा नाम विक्की सिंह सलूजा, सलूजा रेसिडेंसी प्रोपराइटर। आसनसोल नगर निगम के 42 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी डॉक्टर अमिताभ बासु ने आज 42 नंबर वार्ड के श्रीकांतो मैदान में चुनाव प्रचार किया। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए कुछ एक लोगों को साथ लेकर वो लोगों के घर घर गए और लोगों से चुनाव में टीएमसी के पक्ष में मतदान करने का अनुरोध किया। दादा, वार्ड नंबर 42 से आपको खड़ा किया गया है, तो यहाँ का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए, अभी तो मैं 3-4 आदमी लेके ही निकला था। अभी यहाँ का जो लोकल जो वोटर है, लोकल जो नागरिक है, सिटीजन है, वो लोग सब आ रहा है। बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि सबको मालूम है जे बोर्ड तृणमूल का ही होगा और दीदी ही डेवलपमेंट का काम करेंगे कर रही है, तो वोट तृणमूल के ही जाएगा। यहाँ की क्या समस्या आपको नज़र आ रही है अभी? देखिए, समस्या तो सबसे बड़ा गोटा आसनसोल का ही है, जो पानी का समस्या है वो लोग हम जो परमानेंट क्या सॉल्यूशन करना है वो हम लोग देखेंगे। बहुत सारा ओवरऑल टैंक बन रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, मगर पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है, जितना डिमांड है उतना सप्लाई कम हो रहा है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारा जगह पाइप पुराना हो गया, वहाँ का पाइप चेंज करना होगा। पाइप लाइन 3 इंच है, उसको ज़रा बढ़ाना है क्योंकि वो 3 इंच से बहुत ज़्यादा इधर उधर बाइफर्केट होकर लाइन गया है। ये थोड़ा समस्या है। ऐसे रोड तो बहुत अच्छा ही बन गया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। पानी का समस्या ज़्यादातर है और इधर का जो समस्या है, ड्रेनेज का समस्या है, वो हम लोग ऑलरेडी देख लिया है, उसका काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। इधर का जो ड्रेनेज का समस्या, दिल्ला नगर का ड्रेन का काम शुरू हो गया, वो इलेक्शन के बाद हमको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस में हम लोग करेंगे। जो यहाँ का ड्रेन बारिश होबार होने से ड्रेन जो ओवरफ्लो होता है, उसके लिए हम लोग कोई परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ का लोग कई मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, दीदी
पूरा पश्चिम बंगाल के लिए सोच रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। हर घर में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का कोई ना कोई सुविधा सबको मिल रहा है। इतना गरीब आदमी जो यहाँ पे जो ज़्यादातर गरीब आदमी है सबको ऑपरेशन के लिए 700 कार्ड का सुविधा मिल रहा है, लक्की भंडार का रुपया मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो सबको दीदी का साथ रहिए तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और यही हम बोलना चाहते हैं। रानीगंज बल्लभपुर ग्राम पंचायत स्थित राशन दुकान नंबर 4 में बायोमेट्रिक सिस्टम से ग्रसित राशन ग्राहकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर सीपीएम की बल्लभपुर स्थानीय समिति ने शनिवार को धरना दिया। इस दिन उन्होंने राशन की दुकान के मालिक अपूर्व दास को 2 घंटे से अधिक समय तक घेर लिया और विरोध करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इलाके में करीब 3,500 राशन उपभोक्ता हैं जो लगातार राशन लेने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई लोगों को बायोमेट्रिक पद्धतियों को इकट्ठा करने में गलत फिंगरप्रिंट के कारण राशन सेवाओं तक पहुंच से वंचित किया जा रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले इस क्षेत्र में सीपीएम के नेतृत्व वाले खाद्य आपूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया था। शनिवार को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले सदस्यों ने मांग की कि उंगलियों के निशान मेल नहीं खाने पर भी राशन सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने पहल करने की मांग की, जिसे उन्होंने कहा कि वो इस राशन की दुकान से लिंक करेंगे और कहीं नहीं। पुलिस को इस तनावपूर्ण स्थिति के बारे में पता चलने के बाद रानीगंज बल्लभपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बात कर खाद्य निरीक्षक से बात कर समस्या के समाधान की कार्रवाई की जाएगी आश्वासन दिया। उसी दिन उन्होंने राशन डीलर को सूचित किया कि सभी ग्राहकों के हाथ के निशान मेल नहीं खाते हैं और उनकी एक सूची बनाकर इसे हल करने के लिए कार्रवाई करें। शनिवार को हुए इस विरोध प्रदर्शन से राशन डीलर के काफ़ी देर तक आपके साथ रहने के बाद स्थिति सामान्य हो गई। রেশন দোকানে মানুষের লিংক করছে না, রেশন দিচ্ছে না। আমাদের পরিবারে হয়েছে, এখানে অনেক মানুষ সাধারণ মানুষ এসেছে যাদের মানুষের লিংক নেই, রেশন হচ্ছে না। আমাদের যেটা সরকারের কাছে প্রশ্ন, সরকার বলেছিল দুয়ারে দুয়ারে আমরা মানুষের রেশন পৌঁছে দেব। আমরা কি সরকার কি এটা দাবি করতে পারে যে ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের লিংক করা সম্ভব এই মুহূর্তে হয়ে গেছে? যদি না হয়ে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই সব মানুষগুলো রেশন পাবে না কেন? আজকে থলি হাতে এসে মানুষ কোভিড অবস্থায়, মানুষ করোনাতে মানুষ খালি হাতে ঘর ফিরে গেল। যদি আমার লিংক মিলছে না, আমাদের এখানে পঞ্চায়েত মেম্বার আছে যে প্রশ্ন সে করেছে, চোখের যে রেটিনার যে ছবি আপনারা সেই ছবি আপনারা মেলান। আমাদের দাবি সরকার আমাদের রেশন কার্ড দিয়েছে, রেশন আমরা এই দোকান থেকে নেব, আর যদি না পাই মানুষ রাস্তায় নেমে মানুষ তার অভিযোগ তো আপনার উপরে উঠছে যে আপনি এখানে রেশন দিচ্ছেন। আমার বল কেন আমার তোমার বল কিছু নেই, আমার এটা মিথ্যা করে লাভ নেই। আমার বল তোমার তুমি কি করবে? তো ওই বুঝে একটি কথা বলছে, তো নিষ্পেষের কথা করালাম, আমরা যেটা করালাম আমরা তো করো না, এই ধরেন আজকে ধরে নিষ্পেষরা বোঝা ইয়েকে নাম অবাক থাকে। তো আপনারা জানিস এখনই ফোন করে ইন্সপেক্টর জানিস সব জানা কি করবো, আমাদের কিছু করো না। আমরা লাস্ট হচ্ছে বলে পাঠা যা হচ্ছে পাবলিক তো আমাকে বলবে, বলছে শুনতে হচ্ছে চুপচাপ। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड
फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।